Hello, so today I am going to start with the structure of glucose, and for this I want you to keep your notebooks and pens ready so that you should be drawing the structures side by side as you are seeing the lecture. Now, structure of glucose, we will study the structure of glucose and formation of pyranose ring. So, when what is a we all know about glucose, so it is an example of a carbohydrate which is a monosaccharide, and you know glucose is also known as a blood sugar and dextrose sugar. The chemical formula of glucose is C6H12O6. It is a hexose sugar, and the empirical formula, which is CHO, that I have to see CHO whole bracket N, which I have told you earlier. It is shared by many other sugars such as galactose, mannose, all the hexoses sugars, and even fructose also. Six carbon sugars, they have the formula C6H12O6. So glucose is by far the most abundant monosaccharide, and it is usually found in free state in fruits, plants, honey, in the blood of animals, mammals, and it can be found in combination with many glycosides such as in the form of disaccharides also, polysaccharides also, in the form of glycoproteins also. So we are going to study the structure and properties of glucose in detail as compared to other sugars. So let us start with the structure. Now before I start with the structure, you must be drawing this in your notebook, and uh, you must be drawing this in your notebook. So first of all, you must be this structure you have to draw first. So 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 carbon you will draw. Sorry, 6 carbon you will draw. One second, I should highlight the uh, pen from here. So I would, yeah, so you have to draw this structure from here: 1 2 3 4 and 5 and 6. First carbon, you are having the aldehyde group CHO, and next, in case of glucose, you have to remember, then carbon number 3 will have OH on the left side. Now you should be remembering this, that this portion is the left side and this portion is the right side. So in the left side, on third carbon, when you have OH on the left side and H on the right side, then this is the structure of glucose. On the other carbon you have HOH, 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 and this is a valency completion, HHOH, CH2OH. This is an alcohol group. So basically it is a polyhydroxy molecule. You have to remember the third carbon has OH on the left side and H on the right side. Now this is the left side and this is the right side. Now we have to draw, this is an open structure of glucose. So what are we going to do? We know that we have the term known as enantiomers. Now what are enantiomers? When you are drawing this particular structure, in this case 1 1 2 3 4 5 and 6, here we have, let me change the color. Yeah. Now how do we say that it is an L form or it is a D form? In case of D form, always this second last carbon, the fifth carbon, when OH is on the right side, then it is the D form of any sugar, and when OH is on the left side, then it is the L form of sugar. So others all see this difference in the structure, all in difference in the structure in the D and the L form. For D and L form, we have to take the fifth carbon. So the D and L forms of any sugar, dextro and levorotatory, are known as, the term is known as the enantiomers. Enantiomers means they are different, but they have the same molecular formula. And when we pass the plain polarized light through the solution, so they will either rotate to the right side or to the left side. So when the sugar molecule is rotated to the right side, then it is the D form, and when it is rotated to the left side, then it is the levo form, dextro and levo form. So enantiomers, D and L sugars are called as the enantiomers, that is, they are the mirror images of one another. So the difference is that OH group on the carbon chain. Another difference is that the D-glucose is natural occurring, which is easily present in our fruits, in the blood, in our blood. L-glucose is synthesized in the laboratory. So let me start with the structure. Now this is very important, and you should be very ready with your notebooks.
First you will draw this structure in which you will label the 6 carbon, and then this is the left side, this is the right side. Now I have told you that when I will tell you to draw the structure of glucose mean CHO group is here, first carbon is here, and then third carbon you will have H and OH, and other groups will have HOH, HOH, HH, right? So let me delete this. And now what we will see, when the open structure, I am writing this as D glucose. You just focus on the D glucose. Let me change the color. Yeah. So see, what you will have to focus is that now this is the main structure, that is of glucose. This is a open form. Now this O group is negative, CHO group is there, so O is electronegative and carbon is electropositive. And in the fifth carbon we have OH group here, again O is negative, electronegative, and OH is positive. So what will happen, the H positive, it will interact with the negative O, and O negative, it will interact with the C positive here. So this red arrows that you can see. Now when the interaction will take place, now when the interaction will takes place, this reaction will result in the formation of because it will be interaction in such a way that water will be lost. So we have one oxygen, the linkage will be between C1 and C4 C5 via O linkage, right? So now see the configuration of first carbon. CHO was there when it has interacted with this OH. Now this has converted into OH group. This one OH group it has resulted in, and the C1 has been linked through O group to C5. Very important part. Now when this type of interaction occur, now this sugar which we will get is the alpha D glucose. Why I am saying alpha? Now let us draw the structure in the, now before I go to the structure of the Hayward structure, ring structure, I am now proceeding to this type. अब इस तरफ को जब हम जाते हैं तो ये इंटरेक्शन C1 और C5 के बीच में हुई, इधर भी C1 और C5 के बीच में हुई। डिफरेंस क्या आया इसके अंदर, यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, जब हमारे पास ये OH इस तरफ को अगर आ जाएगा तो ये बीटा फॉर्म हो जाएगी। ये भी आपको पता लगेगा इसको मैं क्या क्यों बोल रही हूँ। और अगर हमारा फर्स्ट कार्बन पे OH इंटरेक्शन इस तरीके से हुई है कि OH जो है हमारा राइट साइड पे आ रहा है फर्स्ट कार्बन वाला, तो वो अल्फा फॉर्म होगी। अब अगर आपको आता है कि फिशर प्रोजेक्शन बनाओ, तो ये हमारी अल्फा और बीटा फॉर्म्स जो हैं दे आर दी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट डिपेंड्स ऑन दी कि कैसे इंटरेक्शन हो रही है C1 और C2 के C5 के बीच में, कि OH की पोजीशन कहाँ जा रही है फर्स्ट कार्बन पे। बात सारी सिर्फ अल्फा और बीटा की अगर हम बात करेंगे तो बात सिर्फ रहेगी कि फर्स्ट कार्बन पे OH की ओरिएंटेशन कैसे जा रही है, लेफ्ट साइड पे जा रही है या राइट साइड पे जा रही है। ठीक है, वो अब आपको और सिंप्लीफाई कैसे होगा। अब इन्हीं फॉर्मूलाज का अगर मैं आपको बोलूँगी कि हमें हैवॉर्ट्स प्रोजेक्शन बनानी है, ये हैवॉर्ट्स प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है, तो हम अब इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे जैसे अल्फ़ा वाली शुगर को अब हम लिखने लगे हैं। तो अब इस रिंग को हम जो इंटरेक्शन हुई है अब ये इस रिंग की फॉर्म में आ जाती है, 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। आई होप आपको ये पता लग रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 6 कार्बन सबसे पहले आपने रिंग बना के मार्क कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेबलिंग कर ली। आई होप आपने साथ साथ में कर लियो। अब हमने इसको लेबल करना शुरू करना है। कैसे करना है, अब देखो कि इस स्ट्रक्चर पे जाओ और इसको हमने स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लेके आना है। क्या फंडा याद रखना है इसके अंदर आपने, कि लेफ़्ट साइड मतलब टॉप, हमेशा लेफ़्ट साइड जो रहेंगी ये वाली, ये हमेशा यहाँ पे टॉप पे रहेंगी ऊपर, और राइट साइड हमेशा नीचे रहेगी। कैसे, ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ। ये इस कार्बन नंबर 1 का ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि टॉप मतलब लेफ़्ट साइड, बॉटम मतलब राइट साइड। लेफ़्ट हो गई ये वाली साइड, राइट हो गई ये वाली साइड। अब फर्स्ट कार्बन पे देखो, ये वाले पे लेफ़्ट पे क्या है H, तो मैंने यहाँ पे इसको मैं एक बार रब करूँ, अब आप ध्यान से देखना इसको। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे क्या है H, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे इधर आया H, और इसकी राइट साइड पे कौन है, OH, तो HOH आ गया। सेकंड पे ऊपर है H, नीचे है OH। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे देखो OH ऊपर है, तो यहाँ पे आ गया OH और नीचे H।
फोर्थ पे आ गया HNOH, ठीक है। और फिफ्थ पे देखो, अब फिफ्थ पे ये वाला H ही है हमारे पास, ये नीचे H आ गया और पूरा स्ट्रक्चर C2H जो है 6 कार्बन वो पूरा ऊपर चला जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को जब हमने इस फॉर्म में लिख दिया, रिंग फॉर्म में लिख दिया, तो हम इसको बोलते हैं हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। जो ये फॉर्म्स थी, ये लीनियर फॉर्म में जो इंट्रैक्शन दिखाई जा रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो कि आपने इस वाले स्ट्रक्चर को हमने इस फॉर्म में लेके आना है। अगेन हमने पहले 6 मेंबर्ड रिंग को तैयार कर लेना है, यहाँ पे लाइंस लगा लेनी है, नंबरिंग कर लेनी है। अब फर्स्ट कार्बन पे देखो OH ऊपर है, OH ऊपर और H इधर, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रह रहा है। सिर्फ जो चेंज आया है, अब मैं जा रही हूँ इस पे अल्फा और बीटा फॉर्म पे। अब आप देखो कि फर्स्ट कार्बन पे चेंज आया है, फर्स्ट कार्बन पे चेंज है, फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे OH ऊपर है, यहाँ पे OH नीचे है। जब भी किसी शुगर में OH नीचे रहेगा, जब भी किसी कार्बन में फर्स्ट कार्बन में जब भी OH की पोजीशन नीचे रहेगी तो वो अल्फा फॉर्म होगी, और अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर रहेगा तो वो बीटा फॉर्म होगी। तो अल्फा और बीटा फॉर्म जो होती हैं, दे आर नोन एज दी एनोमर्स बोलेंगे उनको। तो अब इसको मेरे को नेम करना है, तो नेम मैंने कैसे करना है, नेम देखो क्या होगा। मैं जैसे इसका नेम बता रही हूँ आपको। क्योंकि OH नीचे है तो नाम हो गया अल्फा, क्योंकि ये डी फॉर्म थी तो हो गया डी, क्योंकि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ही हमने इसको बनाया है, थर्ड पे OH ऊपर है तो ग्लूको। अब रिंग क्योंकि ये 6 मेंबर्ड है तो नाम हो गया पैरानोज। तो मेरी पूरी शुगर का नाम क्या हुआ, अगर नेम लिखना है अल्फा डी ग्लूको पैरानोज, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूको पैरानोज। ये स्ट्रक्चर आपको जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो ये स्ट्रक्चर आपको, ये स्लाइड आपको बिल्कुल थॉर होनी चाहिए, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप करके चलूँगी। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मैं पहले करा रही हूँ, फिर मैं अगले स्ट्रक्चर पे जाऊँगी ताकि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो पूरा कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको थोड़ा सा वो मैंने खुद बनाया हुआ है, ये मैंने आपको नेट से कॉपी लेके बताया हुआ है कि अब ये देखो कि ये OH फर्स्ट कार्बन पे नीचे है और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ये देखो थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन नॉर्मल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, डी ग्लूकोज में हमेशा इधर रहती है, तो थर्ड कार्बन पे OH यहाँ पे रहेगा ऊपर और नीचे। अब अल्फा बीटा कब पता लगाना है कि फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन क्या है, अगर नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म है, अगर ऊपर है तो ये बीटा फॉर्म है। सो दीज आर नोन एज दी एनोमर। तो इसका मतलब कार्बन नंबर 1 क्या होता है, इट इज़ दी एनोमेरिक कार्बन। सो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अगर हम इस सॉल्यूशन को अगर हम डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये अल्फा फॉर्म जो है वो बीटा में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज दी म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो ये एक लास्ट स्लाइड है जिसमें सारा आपको फाइनलाइज फॉर्म में दिया हुआ है। ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देन आपको मैं पूछ सकती हूँ कि अगर मैं आपको ये नाम दे दूँ सिर्फ बीटा डी ग्लूको पैरानोज, तो आपको सब फटाफट बनाना आना चाहिए। उसमें बीटा बता दिया तो इसका मतलब फर्स्ट कार्बन पे सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता लग गया तो इसका मतलब डी ग्लूकोज को पहले रिंग फॉर्म में लेके आना है, और जब उसको रिंग फॉर्म में ले आओगे उसके बाद देखना है कि अल्फा बनाना है या बीटा बनाना है। अल्फा बनाना है तो फिर हमारे पास OH नीचे आएगा, बीटा बनाना है तो OH ऊपर आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। सो ये मैं स्ट्रक्चर ऑफ, तभी मैं बहुत शॉर्ट पार्ट्स में आपको वीडियो भेज रही हूँ, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर मैं चलूँगी ताकि क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री को ओरली कराना थोड़ा टफ़ है और आपके लिए समझना भी टफ़ है। तो ये स्ट्रक्चर आपको साथ के साथ बनाना है और प्लीज़ साथ के साथ समझ के करो, वरना आगे कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बेसिक से शुरू कर रही हूँ। आपको यहाँ पे 4 टर्म्स जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इनैंशोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, एपीमर्स क्या होते हैं और एनोमर्स क्या होते हैं। 3 टर्म्स एपीमर्स, एनोमर्स एंड इनैंशोमर्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एंड ये जो स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैंने आपको डी ग्लूकोज बोल दी और इसके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोले तो ये दोनों बनाने हैं, और अगर हैवर्ट्स प्रोजेक्शन बोले तो ये 2 बनाने हैं, अल्फा और बीटा। सो कल को अगर मैं आपको नाम दूंगी कि मुझे बीटा डी ग्लूकोपैरानोज बना के दो, तो आपको इस नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर से नाम नहीं आना चाहिए, नाम से स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।